This year, we are proud to host over 1,200 booths and 700 exhibitors showcasing the finest creations to nearly 50,000 domestic and overseas visitors. What sets JJS apart? It's our unique blend of B2B and B2C interactions. This year, we are thrilled to increase the booths in the Pink Club, a dedicated space with almost 100 prefabricated booths designed specifically for B2B meetings, fostering meaningful connections and collaboration across the industry. As we kick off this spectacular event, we are deeply honored to welcome some of the most esteemed chief guests, each a trailblazer in the jewelry world. Their presence underscores the significance of JJS as a premier platform for innovation, creativity, and excellence in the jewelry industry. Since its inception, the Jaipur Jewelry Show has had the honor of welcoming numerous prominent chief guests who have significantly contributed to its prestige and success. Notable figures such as Srimati Vasundhara Raje, Mr. Shumal Schneitzer, Donna Baker have graced the event with their presence. Distinguished personalities like Dr. Gaetano Cavalieri, Miss Varda Shine, Mr. Vikram Merchant, and Mr. Sean Thomas Gilbertson have also lent their support and expertise. The show has been further enriched by the attendance of Srimati Margaret Alva, Mr. Kurt Biden, Mr. Ahmed bin Sulaim, Mr. C.K. Venkatraman, Mr. Amit Yadav, and Srimati Diya Kumari. Their involvement underscores the event's significance in the global jewelry industry, highlighting its role as a premier platform for showcasing excellence and innovation. While enjoying the show, don't miss the prestigious JJS IJ Awards, where we recognize outstanding contributions to the jewelry design community. To promote budding designers and students of various institutes, the Jaipur Jewelry Design Fair (JJDF) is another highlight, promoting the vibrant creativity and craftsmanship of our talented artisans. This year also, we are excited to introduce the Best Booth Awards, recognizing excellence in exhibition design and presentation across 4 categories. These awards celebrate creativity and innovation, showcasing the hard work and dedication of exhibitors who elevate the standard of our show. This year, our promotion features stunning gemstones, from the timeless elegance of emeralds to the rich allure of rubies, the intricate beauty of Kundan Meena, and the brilliance of diamonds. Each piece tells a story, and we invite you to discover these treasures firsthand. For those looking to deepen their knowledge, we have an extensive collection of books on gemstones and jewelry. Dive into the rich history and artistry that define this exquisite industry. Experience the glitter of the grand networking dinner on one of the evenings during the event, where exhibitors got the opportunity to connect with top retailers and buyers of JJS. Live performances by the musical band enthrall the audience. There is a dedicated team of JJS organizing committee, ably supported by the JJS subcommittee members, and it's their hard work and commitment that has resulted in the resounding success of JJS. It ensures that everyone wears their security ID badge at all times to help maintain a secure environment for everyone. Getting around the venue is easy with the shuttle service, golf carts, and environment-friendly e-rickshaws available to assist in commuting. So, what are you waiting for? Visit Jaipur Jewelry Show 2024 and immerse yourself in a world of beauty, creativity, and inspiration. Together, let's celebrate the legacy of jewelry craftsmanship and the vibrant culture of the Pink City. नमस्कार। JJS 22वां वर्ष 20वां संस्करण 20 दिसंबर 2024 की इस गुनगुनाती सुबह में JECC पर JJS कार्यकारिणी की ओर से आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आगामी 4 दिन 1200 बूथ्स पर जगमगाते रत्न व आभूषणों की चमक में अग्नि व प्रकाश यानी ऊपर उठने की रोशनी का आह्वान और दीप प्रज्वलन के माध्यम से सफलता की ओर अग्रसर होने का विश्वास। मैं सभी अतिथियों से आग्रह करना चाहूँगा कि वे आएँ और दीप प्रज्वलन के लिए मंच पर पधारें। आई रिक्वेस्ट श्री विमल चंद्र जी सोराना, चेयरमैन JJS, एंड श्री राजीव जैन, ऑनररी सेक्रेटरी JJS, टू एस्कॉर्ट द चीफ गेस्ट। आवर चीफ गेस्ट श्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़,
कैबिनेट मिनिस्टर, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, आईटी, स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। श्री राज्यवर्धन सिंह जी राठौर, श्री प्रमोद अग्रवाल, श्री संयम मेहरा और श्री निर्मल बर्डिया, श्री विमल चंद जी सुराना, श्री राजीव जैन। दिव्या दिव्या रे दीपत्कार, कानी कुंडल मोतीहार, दिव्याला पाहून नमस्कार। इसी क्रम में मैं आमंत्रित करना चाहूँगा जेजेएस के परमानेंट इनवाइटी श्री के जैन साहब को कि वे मंच पे आएँ और वे मुख्य अतिथि का स्वागत करें बुके के माध्यम से। श्री के जैन। अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा जेजेएस डायरेक्टर श्री विजय चौड़िया जी को कि वे मंच पे आएँ और जेजेएस का थीम पेन आज के मुख्य अतिथि श्री राज्यवर्धन सिंह जी को भेंट दें। श्री विजय चौड़िया। अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा श्री दिनेश जी खटोरिया, वाइस चेयरमैन जयपुर ज्वेलरी शो, वे आएँ और आज के हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर श्री प्रमोद जी अग्रवाल को बुके भेंट दें। श्री दिनेश जी खटोरिया। अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा श्री NR कोठारी साहब को कि वे मंच पे आएँ और हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर प्रमोद जी अग्रवाल को जेजेएस लोगो पिन भेंट दें। श्री नवरत्न जी कोठारी। धन्यवाद कोठारी साहब। और मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री कमल जी कोठारी, ट्रेजरर जयपुर ज्वेलरी शो, वे मंच पे आए और आज के हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर श्री संयम जी मेहरा को बुके भेंट दें। श्री कमल जी कोठारी। संयम जी चेयरमैन जीजेसी हैं और हमारे से इनका लंबा जुड़ाव रहा है। श्री संयम मेहरा। और मैं इसी क्रम में आमंत्रित करना चाहूँगा श्री महावीर शर्मा जी को कि वे मंच पे आएँ और जेजेएस थीम पेन आज के हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर संयम मेहरा जी को भेंट दें। श्री महावीर शर्मा। मेरा आग्रह अब डॉक्टर नवल अग्रवाल जी थे कि वे मंच पे आएँ और हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर निर्मल जी बर्डिया, रीजनल चेयरमैन जीजेपीसी को बुके भेंट दें। और इसी क्रम में मैं आमंत्रित करना चाहूँगा अशोक जी सिंघी को कि वे लोगो पिन के लिए मंच पे आएँ और निर्मल जी बर्डिया को भेंट दें। डॉक्टर नवल अग्रवाल और अशोक जी सिंघी।
धन्यवाद अशोक जी। और अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा जयपुर ज्वेलरी शो के चेयरमैन श्री विमल चंद जी साहब सुराना को कि वे जेजेएस के बारे में आपको बताएं। जयमंड ज्वेलरी इंडस्ट्री में श्री विमल चंद जी साहब सुराना के परिचय की कोई ज़रूरत नहीं है, पर हम कह सकते हैं कि आप एक व्यक्ति नहीं, संपूर्ण संस्था हैं। 2007 से जेजेएस के चेयरमैन का पदभार संभाल रखा है आपने, और आप शिक्षा में विद्याश्रम स्कूल, चिकित्सा में भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल, आध्यात्मिक में विपश्यना के साथ अनेक सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, और एक कर्मयोगी के रूप में आप जाने जाते हैं। सेल्फलेस सर्विस और सर्विस अबाउट सेल्फ आपकी मिसाल है। ऐसे चेयरमैन को मैं आमंत्रित करना चाहूँगा कि वे जेजेएस के बारे में अपनी बात कहें। श्री विमल चंद जी साहब सुराना। On behalf of the organizing committee of Jaipur Jewelry Show, I heartily welcome Colonel Rajvardhan Singh Ji Rathod, Minister of Industries, IT, Youth Affairs and Sports, Government of Rajasthan. It is a pleasure to have you, sir, at the inauguration ceremony of this show. We are also welcoming Shri Pramod Ji Derewala, National Gem and Jewelry Council Chairman of India, Shri Nirmal Ji Bardia, Regional Chairman GJEPC, Shri Sajjan Mehra, Chairman GJC and IBDT Council. I am also happy to welcome Shri Chetan Mehta, National President IBTA, Shri Jaideep, Secretary Sitapura Association, Shri Arvind Ji Gupta, he is the Shri Alok Sonkhya, President Jewelers Association, Shri Neeraj Ji Lunawat, Secretary Jewelers Association, and all other my colleagues from different associations. We heartily welcome you all. JJS has been a journey of 22 glorious years and has attained extraordinary heights and has been possible with the support and efforts of our exhibitors, visitors, promotion partners, efforts of our exhibitors, and dedicated members of our JJS organizing committee and its subcommittees, and also Gem and Jewelry show staff. JJS has always proactively promoted different stones and jewelry as the theme of its past editions. Continuing with the same trend, it is Ruby as a theme for this year. And we have Gemfields as our prime promotion partner along with 15 other support group members. With the astounding success of the Rising Rajasthan earlier in this month, JJS 2 is an event from the same soil and taking place at the same venue. And we are sure that this year's JJS will also be a very grand success. I am confident that these 4 days will be very fruitful to you, and JJS 2024 will be a huge success, satisfying one for one on all, and will bring something new to you all. Thank you very much. धन्यवाद सुराना साहब।
और आपकी एक बात सबने बहुत गौर से सुनी है कि आगामी 4 दिन बहुत अच्छे रहें, और उसके लिए जो आपने ईश्वर से प्रार्थना की है, मैं समझता हूँ सब चाहते हैं कि आगामी 4 दिन सबके बेहद अच्छे रहें। अब मैं आमंत्रित करूँ श्री राजीव जैन, ऑनररी सेक्रेटरी जयपुर ज्वेलरी शो। मैं बताना चाहूँगा कि राजीव जैन फाउंडर सेक्रेटरी ऑफ जयपुर ज्वेलरी शो हैं। ही हैज़ बीन पास्ट चेयरमैन ऑफ Gem and Jewelry Export Promotion Council called GJEPC. He has been deeply involved with Indian Institute of Gem and Jewelry IIGJ. He is involved with Vidya Ashram, JCS और भी अनेक संस्थाओं से आप जुड़ा हुआ है आपका। ICA कांग्रेस जो जयपुर में हुई थी, बहुत सफल कांग्रेस हुई थी, उसके आप चेयरमैन थे, और उस कांग्रेस में आपकी इंटरनेशनलिटी और आपका रोल देखते हुए जेम एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री के लिए आपको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिल चुका है। एंड there is a lot to say about him, but I feel we have got limited time. I welcome JJS Secretary Shri Rajiv Jain. A very good morning to all of you, ladies and gentlemen here. Respected Shri Rajyavardhan Singh Ji Rathod, our Cabinet Minister of Government of Rajasthan. Sir, first of all, on behalf of the whole committee and whole fraternity of gems and jewelry industry, I welcome you here and thank you so much for accepting our invitation in the last moment, because we believe that you were so busy with the Rajang Rajasthan. So we contacted you late, that was the reason. And you accepted our invitation, and I can assure you after this function and visiting the show, you won't regret that you visited us. Pramod ji is amongst us. He is the chairman of National Gems and Jewelry Council of India. Thank you, Pramod ji, for being here. You are always with us. Sayam ji has always supported us. He is the president of GJSC, and they also come with their team and organize the board meeting. The whole team is welcome by JJS committee. Nirmal ji Bardia, a dynamic leader of our industry, and the way he brought up another show after JJS performing for 10 years, and the way he worked, and he's a regional chairman of Gems and Jewelry Council. Since the inception of Jaipur Jewelry Show, the chairman or the regional chairman, they always become our guest of honor. Thank you, Nirmal ji, for being here. Our chairman, Shri Vimalchandra ji Surana, my committee, there are lots of dignitaries sitting here. Sarvan sir, thank you so much for coming all the way. Thank you, sir. Although Surana Sahib has welcomed the president secretaries of Jewelers Association, our oldest association, Sitapura Gems and Jewelry Association, but Chetan Bhai, a star of our industry, I always call him star. And there are other lots of people as senior member of the industry. I can see Sri Ram also sitting here, who represent GIA India. Nirupa ji also comes every year. You are also most welcome. Sir, I would like to give you a brief about what is JJS. Although you walked a little, you saw what kind of booths people are making here, what kind of exhibitors are here. We started with a humble beginning of 67 booths. That too, there was no convention center, there was no big hotel. We started with EP, Entertainment Paradise. And then with the support of all our exhibitors and visitors, this is the day today, after 22 years, that this year we have 1,200 booths altogether. And in 1,200 booths, we have tried to accommodate all the verticals of the industry. May it be diamond jewelry, may it be color stone jewelry, may it be kundan jewelry, silver jewelry. Color stone section is there, ancillary section is also there. You had a glimpse of that. So we are trying to accommodate everything here. But since Pramod ji is also sitting here, I request you and our minister sitting here that now this place is smaller for us. So we need some additional space here. Pramod ji, if you are listening to me, next year we might add another 200 booths. So we need more space. So please build up this area at least.
And the best part is that whoever came to us in JJS has stayed with us. May it be our exhibitors, our retaining percentage is 95. And even the vendors, those who have joined us in 2003, are still with us. So that is the beauty of the show. Lots of delegations have also come. This year there is a big delegation of 12 people from Russia and neighboring countries. In international exhibitors, we have 2 booths from Hong Kong and Bangkok. So you saw that 66% of the booths are created, and they are created like showrooms. If somebody enters a booth, they feel कि showroom में आ गए. Under one roof, everything is available, और जो experience होता है, वो इस तरह का होता है कि जो एक showroom में जाके experience होता है. तो ये एक खूबसूरती है जयपुर ज्वेलरी शो की, जो पिछले 20 वर्षों से चल रही है. हमारी एक बहुत प्रोमिनेंट चीज़ और है जिसको हमारा सब लोग बाहर भी जब हम रोड शो पे जाते हैं तो सब याद करते हैं और तारीफ़ करते हैं, वो है हमारा लंच. हमारे लंच की बहुत तारीफ़ होती है. और मैं देख रहा हूँ जो अभी ताली भी थोड़े से लोग बजा रहे थे, वो जितने बाहर से लोग आए हुए थे वही बजा रहे थे, क्योंकि जयपुर वालों को तो हमेशा ही ऐसा लंच मिलता है. सर, वी हैव बीन ट्राइंग टू pioneer in so many things. There was a time when there used to be no show in Jaipur, and Sri Rashmikant Durlabh ji had this. He was a visionary because the first national show also, he was the person who started the show of German Jewelry Export Promotion Council, which is IJS, in the year 1985, when he was the chairman of the council. And he handpicked few persons from the industry with all the verticals, and he started this show. And after the success of this show, there were so many shows after that, and they all are successful show besides JJS. So actually this became a mandi of jewelry after organization of JJS. Otherwise Jaipur was used to remember only for colored gemstone. और एक टाइम वो था कि सारी इंडस्ट्री बॉम्बे में थी, हीरे की इंडस्ट्री थी, और 2000 से जब ये EPIP और SEZ शुरू हुए तब यहाँ पे ज्वेलरी बनने लगी, यहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर बना. अभी आपने यहाँ पे जो हमारे IIGJ है इंस्टीट्यूट, उसके भी जो स्टूडेंट्स कैसे काम कर रहे हैं वो भी देखा. इसके अलावा हम लोग R&D में भी आगे बढ़ना चाहते हैं. अभी आफ्टर कोविड स्किल गैप बढ़ गया है और स्किल लेबर भी हमारी कम है. स्किल आर्टिसंस बोलते हैं हम उनको, लेबर नहीं बोलते. हमारी वो भी कम है, हम उसमें भी आगे बढ़ना चाहते हैं. अभी हमने एक इनिशिएटिव लिया है ज्वेलर्स एसोसिएशन, सीतापुरा एसोसिएशन और IIGJ के साथ, जिसका हम उसमें स्टाइपेंड दे के स्टूडेंट्स को सिखा रहे हैं कि जेम कटिंग कैसे होती है, और इसमें सबका सहयोग मिल रहा है. हम लोग पूरी फाइनेंशियल हेल्प का कमिटमेंट फर्स्ट ईयर का हमने किया है कि जो भी खर्चा आएगा वो JJS वहन करेगा. इसके अलावा हम लोग R&D में भी आगे काम करना चाहते हैं, बिकॉज आज जिस हिसाब से टाइम बढ़ रहा है और टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, तो हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, क्योंकि बहुत सारे स्टोन्स हैं. पहले एक समय होता था कि कोई भी तरह का ट्रीटमेंट ऐसे कहलाया जाता था कि ट्रीटमेंट कोई गलत चीज़ है, बट टुडे इट इज़ एक्सेप्टेड, क्योंकि नेचुरल स्टोन है. अगर उसमें ट्रीटमेंट करके कोई एनहांसमेंट होता है तो वो एक्सेप्टेबल है पूरे मार्केट को, विद द डिस्क्लोजर ऑफ कोर्स. तो हम उसमें भी आगे काम करना चाहते हैं अपनी इंस्टीट्यूट्स के साथ, अपनी एसोसिएशंस के साथ. तो इसमें अगर हमें राज्य सरकार का कुछ सहयोग मिले तो हम इसमें आगे बढ़ना चाहते हैं. अभी आपने देखा कि ये जो एरिया है ये सारा ये बडिंग डिज़ाइनर्स का है. वी डोंट चार्ज देम एनीथिंग. हमारा जो उद्देश्य ये रहता है कि जो नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं या जो स्टूडेंट जो डिज़ाइनर नए बन गए और उन्होंने अपना अगर यहाँ डिस्प्ले करना है, तो उनके पास अभी फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग इतने नहीं है कि वो कर सकें, तो इसके लिए हम उनको स्पेस भी देते हैं. और हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स
बहुत अच्छी अच्छी ब्रांड्स भी बन चुकी हैं, तो दैट इज़ द थिंग। हम लोग प्रमोशन भी करते हैं, हमने कई स्टोन्स का प्रमोशन किया, टेंजनाइट का किया, कुंदन मीने का किया, लास्ट ईयर 2 साल से हमने एमरल्ड का प्रमोशन किया, और मैं समझता हूँ वो एमरल्ड प्रमोशन का एक स्वरूप देखने को मिला। थोड़ा सा उसका क्रेडिट लेना चाहूँगा कि जो देश की सबसे बड़ी शादी हुई उसमें सबसे ज़्यादा अगर कोई जेम स्टोन दिखा तो वो एमरल्ड ही दिखा, तो इसका थोड़ा सा क्रेडिट तो जयपुर ज्वेलरी शो को भी जाता है। इस बार हमने रूबी को प्रमोट किया क्योंकि रूबी इज़ द सेंटर स्टोन ऑफ नवरत्न, और थैंक्स टू जेमफील्ड, जो हम भी इस तरह का कोई भी इनिशिएटिव लेते हैं तो जेमफील्ड हमारे साथ आते हैं और हमें सपोर्टिंग हमें करते हैं, सपोर्ट करते हैं, और उसके अलावा हमारे इंडस्ट्री से लोग आगे आते हैं। इस बार भी 15 लोगों का 15 कंपनीज़ का हमको सपोर्ट है, तो हम लोग रूबी का प्रमोशन कर रहे हैं। एक रूबी की लाउंज भी यहाँ पे बनाई है, तो बहुत सारी चीज़ें मैं शेयर करना चाहता हूँ, लेकिन समय अभी कम है क्योंकि हमको आपको भी सुनना है, और मैं बस यही चाहता हूँ कि जितने भी विजिटर्स आए हैं, जितने भी एग्जिबिटर्स जो एग्जिबिट कर रहे हैं, उनका बहुत अच्छा बिजनेस हो और ये शो एक बहुत सक्सेसफुल शो जाए। थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद राजीव जी, आपने बहुत सी बातें कही पर उसमें 2 बातें सबने गौर से ज़्यादा सुनी। वो थी, एक तो प्रमोद जी से आपका आग्रह कि इस जगह को कवर किया जाए, और दूसरा ये कि जयपुर के लंचेस दुनिया भर में फेमस हैं, हम लोग जवाहरात खरीदने आते हैं पर वो ये भी पूछते हैं आपके यहाँ चूरमा दाल बाटी कब है। ये भी एक बड़ी JJS की उपलब्धि रही है। JJS हर वर्ष एक शो गाइड का प्रकाशन करता है IJ मैगजीन के साथ, जिसमें एग्जिबिटर्स की जानकारी दी जाती है, उनके प्रोडक्ट्स के बारे में का बताया जाता है और कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी जाती है। दैट इज़ ए कलेक्टेबल पब्लिकेशन एंड दैट इज़ ए रेफरेंस एनुअल ऑल्सो। I invite Shri Umesh Tangayach and including me to get the first issue of directory, this show guide, to be released by the chief guest. Umesh Tangayach, please come on the stage. धन्यवाद उमेश जी। अब मैं हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर श्री निर्मल जी बर्डिया को आमंत्रित करना चाहूँगा, रीजनल चेयरमैन GJEPC। श्री निर्मल जी बर्डिया इज ए रीजनल चेयरमैन ऑफ GJEPC। Among the many important milestones, he stands out as a visionary businessman and committed industry leader. He has served Jaipur Jewellers Association as president and he has been just convener also. Nirmal ji got Lifetime Achievement Award from ICA Congress as well as IDCA in USA. I invite Shri Nirmal ji Bardia. नमस्कार। आदरणीय कर्नल श्री राजवर्धन जी राठौड़ साहब, उद्योग और वाणिज्य, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार मंत्री, श्री विमल चंद जी साहब सुराणा, संयोजक JJS, श्री राजीव जी जैन, ऑनरी सेक्रेटरी JJS ज्वेलरी शो की कमेटी के सभी सदस्य, श्री प्रमोद जी अग्रवाल, अध्यक्ष नेशनल जेम एंड ज्वेलरी काउंसिल इंडिया, व्यापार मीडिया, श्री संयम जी मेहरा GJC चेयरमैन, श्री आलोक जी सोखिया ज्वेलर्स एसोसिएशन चेयरमैन, श्री अरविंद जी गुप्ता सीतापुरा ज्वेलरी एसोसिएशन और अन्य क्षेत्रों से आए हुए हमारे मित्रगण, देवियों और सज्जनों, यह मेरे लिए अत्यंत गर्व की बात है कि मैं 22वें जयपुर ज्वेलरी शो में आपके बीच उपस्थित हूँ।
जिसे दिसंबर शो के नाम से भी जाना जाता है। वर्षों से जे शो एक ऐसा मंच बन गया है जो न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व में जेम एंड ज्वेलरी जगत के विशेषज्ञों को एकत्रित करता है। इस शो में लगभग 700 एग्जीबिटर्स और 1200 से अधिक बूथ्स की अद्भुत भागीदारी इस उद्योग में इसकी प्रतिष्ठा को स्पष्ट करती है। जयपुर रत्न और आभूषणों के लिए एक विशेष स्थान रखता है। इसे वैश्विक स्तर पर भारत की रंगीन रत्न राजधानी के रूप में जाना जाता है और आने वाले समय में जिस हिसाब से ज्वेलरी का काम जयपुर में बढ़ रहा है, कलर स्टोन ज्वेलरी का काम बढ़ रहा है, तो इसको आने वाले समय में कलर स्टोन की ज्वेलरी नगरी के नाम से भी जाना जाएगा। जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट काउंसिल के रूप में हम जयपुर की इस प्रतिष्ठा को अधिक सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमारे सबसे प्रमुख प्रयासों में एक है जयपुर से आगामी जेम बोर्ड का निर्माण, जिसे जीजेपीसी एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन जयपुर राज्य सरकार के दूरदर्शी सहयोग के साथ विकसित किया जा रहा है। 43,828 वर्ग मीटर और 30 लाख स्क्वायर फीट में कंस्ट्रक्शन होगा में फैली यह विश्व स्तरीय सुविधा न केवल निर्यातों को बढ़ावा देगी बल्कि 60,000 रोजगारों के अवसर भी सृजित करेगी, जिससे जयपुर रत्न और आभूषणों का वैश्विक केंद्र बन जाएगा। जेम बोर्ड्स की भूमि का आवंटन व पोजेशन हो चुका है। करीबन हम 50 करोड़ रुपये इसमें जमा भी करा चुके हैं और डिजाइन भी अंतिम रूप में है। यह जयपुर को एक वैश्विक जेम स्टोन हब बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हम इस उद्योग के भविष्य को भी सशक्त बना रहे हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जेम्स एंड ज्वेलरी IIG जयपुर के माध्यम से हम युवा प्रतिभाओं को कौशल प्रदान कर रहे हैं ताकि वे इस विरासत को आगे बढ़ा सके। जयपुर के व्यापारियों को समर्थन देने के लिए हमने रफ जेम स्टोन का शो का आयोजन वर्ष 2020 से लगातार किया जा रहा है और सरकार के साथ मिलकर एक कलर जेम स्टोन एसएनजे स्थापित करने की दिशा में हम काम कर रहे हैं। हमारे उद्योग का असली आधार हमारे कुशल आर्टिजन्स हैं जो हर डिजाइन में जान डाल देते हैं। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत जीजेपीसी ने IIG जयपुर और उडुपी के माध्यम से 400 से अधिक स्वर्णकारों को प्रशिक्षण दिया है। ये प्रयास हमारी विरासत को संरक्षित करने के साथ साथ उद्योग की आधुनिक मांगों को पूरा करने के लिए तैयार करते हैं। हमारे सभी प्रयासों का अंतिम लक्ष्य जेम एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री को, व्यापार को, निर्यात को बढ़ाना है। जीजेपीसी भारत में IIGS प्रीमियर, सिग्नेचर तृतीया और IIGS जयपुर शो जैसे आयोजित कर रहे हैं। साथ ही विदेशों में भी इंडियन पवेलियन, बायर्स, सेलर मीट का आयोजन किया जा रहा है। जीजेपीसी ने बम्बई, दिल्ली, जयपुर, वाराणसी और उडुपी में विश्व स्तरीय प्रशिक्षण संस्थान IIGJ द्वारा स्थापित किए हैं और हमारी वर्ल्ड क्लास लेबोरेटरीज जेम्स एंड ज्वेलरी को निरंतर सेवा दे रही है। इस अवसर पर जनवरी में नेक्स्ट महीने में शो भी इसका आयोजन किया जा रहा है। एक बार फिर जयपुर ज्वेलरी शो के आयोजकों, प्रतिभागियों और व्यापारियों को इस शानदार आयोजन का मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद निर्मल जी। और आपकी बात में जेम बोर्ड्स की जो बात आपने कही है और 50 करोड़ रुपए जमा करा दिए गए हैं, ये बात सुन के सबको बड़ा सुखद आश्चर्य भी है। जिन लोगों को पता नहीं है, पर जेम बोर्ड्स एक बड़ा प्रोजेक्ट है जो जयपुर में लिया जा रहा है। नाउ आई इनवाइट श्री संयम मेहरा, चेयरमैन GJC. He is guest of honor. Young and dynamic Mr. Sanyam Mehra is the chairman of All India Gem and Jewelry Domestic Council (GJC). He also served as the convener of GJS, the big show in Geo Center in Bombay. Now I invite Shri Sanyam Mehra. Thank you, Ajay ji. Respected Rajvardhan Singh ji, Rathod, Cabinet Minister, Minister of Industries, Youth, Sport, Sainik Welfare. I can clearly say one of the fittest minister in the entire parliament, and heard very positive things about you from Rajiv ji and Vijay ji. Respected Vimal ji, Surana, Rajiv ji, Nirmal ji Badia, Alok ji Kala, Pramod ji from NGGCI. Clearly, JJS has now become the Jadau and Kundan and Stone capital show of the country. Going ahead many years,
many years, since many years, we are seeing, हम देख रहे हैं कि जितने शोज हैं वो मुंबई में, कलकत्ता, दिल्ली के अंदर हो रहे हैं, लेकिन जयपुर के अंदर ये शो होने से और जो GJC is jointly working with the entire committee here at JJS, हमारे जो शोज होते हैं मुंबई के अंदर, अप्रैल के अंदर, सितंबर के अंदर, एक ही कपड़ा, एक ही ड्रेसिंग पहन के पूरी टीम, एक ही सूट्स, आई कैन से एक्सीलेंट रॉयल सूट्स जो पहन के हमारी पूरी टीम जयपुर की हमारे शोज के अंदर हमारा साथ देती है। और उसी तरीके से कई सालों से, 12 साल से हम अपने ZCM यहाँ पे जयपुर में करते आ रहे हैं। आज भी 3 बजे हमने ZCM रखा है और मोर देन 45 बायर्स फ्रॉम ऑल थ्रू आउट इंडिया, टॉप रिटेलर्स, राजीव जी आर हियर टुडे एट द जयपुर शो टू डू द बाइंग। टोटल ZCM के अंदर more than 80 people will be there, but there will be other manufacturers from the country also, but 45 are the buyers, I can say. I have seen, जब मैं बात कर रहा था राजीव जी से और विजय जी से, मैंने बोला कि जब हमने 4 years पहले हमारा GJS शुरू किया तो मैंने उनको पूछा कि क्या चीज़ हम कर सकते हैं और क्या चीज़ें हम सीख सकते हैं JJS से। तो उन्होंने बोला कि शोज़ तो सारे करते हैं, लेकिन जो हमारी पूरी टीम एक परिवार की तरह काम करती है और जो आज घर में शादी हो उस तरीके से अगर कोई लड़की के पापा बनकर काम किया जाता है, वहाँ पर बाराती बनके सब आते हैं और घर का माहौल यहाँ बनता है। तो उसी चीज़ को हमने अपने GJS में सीखा। यहाँ का खाना, यहाँ की मेहमान नवाजी पूरे इंडिया में सीखने जैसी है। कुछ चीज़ें जो GJC ने की है हॉलमार्किंग के अंदर, जब हम मिनिस्ट्री के अंदर गए तब गोल्ड के ऊपर हॉलमार्किंग हो रही थी, तब हमने कहा कि हॉलमार्किंग ऑन कुंदन जड़ाऊ के अंदर करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसके अंदर काफ़ी चीज़ें लगती हैं और इट इज़ इम्पॉसिबल टू गेट इट हॉलमार्क्ड एज ऑफ नाउ। तो ये चीज़ मिनिस्ट्रीज ने मानी और कई सालों से हॉलमार्किंग ऑन कलर्ड स्टोन्स ज्वेलरी एंड कुंदन जड़ाऊ अभी तक नहीं हुई है जेम एंड ज्वेलरी सेक्टर के अंदर। तो जयपुर के जितने कारीगर हैं, जयपुर के जितने व्यापारी हैं, वो आज भी हॉलमार्क, उनको ये ज्वेलरी हॉलमार्क करने की अभी ज़रूरत नहीं है। उनकी खुद कॉन्फिडेंस और खुद सेल्फ अटेस्टेड हॉलमार्क ही पूरे इंडिया के अंदर चल रहा है। GJC is doing 2 shows as a members of JJS committee is also been very closely working with us, as I said. 2 shows होते हैं सर मुंबई के अंदर, जहाँ पर अप्रैल के अंदर और सितंबर के अंदर होते हैं, जहाँ पर मोर देन 25 to 30,000 करोड़ का व्यापार होता है। इस साल उसके अंदर हमने सिल्वर पवेलियन भी ऐड किया है और ईयर के अंदर 3 प्रेफर्ड मैन्युफैक्चरर ऑफ इंडिया के प्रोग्राम होते हैं, जिसके अंदर हर प्रोग्राम के अंदर मिनिमम 2000 टन्स ऑफ गोल्ड का व्यापार होता है। इस साल हम कुटियोर का शो एक पनाश करके भी मई के अंदर लॉन्च करना चाह रहे हैं, जिसके अंदर मेजरली ओनली डायमंड के मैन्युफैक्चरर्स रहेंगे। सो गोइंग अहेड GJC लकी लक्ष्मी भी हमने किया है। ये साल 1 महीने के अंदर मोर देन 1000 retailers have participated, more than 64 B2B shows are happening, but only 1 or 2 shows are happening for the B2C sector, where more than 12,000 crores of business has happened through the B2C way of doing it. Labhams we are doing, and our entire committee has changed now. Every 2 years, our committee at GJC is changing. I am the chairman for 2 years, or abhi last 10 days are there. After 2nd of January, the new committee will come in. Our new committee members are also here. Saurav ji is here, Avinash ji is here, Sahil bhai, our old committee members are here. Our entire Ajay bhai from the ZCM is here. Gurjit ji is here. So I think the entire committee is here from GJC, and we would like to tell Rajiv ji and the entire team here, Nirmal ji, Vijay ji हम नहीं दिख रहे, और हमारी पूरी टीम जो यहाँ आगे बैठी हुई है, जो मुंबई में आते हैं, सोमेश जी, चेतन भाई, who's been very closely working with GJC since the past many years. We all are being supporting to the JJS show, not only here, और ये 1200 नहीं,
200 आपका टारगेट है, लेकिन हमारा कॉन्फिडेंस है जिस तरीके से ये पूरी एक्सपीरियंस टीम काम कर रही है, 2000 से 2500 स्टॉल्स आने वाले 4 से 5 साल में इज नॉट अ बिग ड्रीम. एंड नाउ जयपुर इज इन one of the capitals for Kundan Jadau store, not only in India but also in the world. We will always at GJC be supporting you. हम आपके साथ हैं. आज हम 45 to 100 लोग लेकर आए हैं. नेक्स्ट शोज में हम more than 250 buyers all throughout India से लेकर आएंगे. Thank you to all of you all. थैंक यू संयम. और हम लोग अपने आप को वर्ल्ड कैपिटल ऑफ एमरल्ड्स कहते थे, पर आपने एक नई बात आज कही है, वर्ल्ड कैपिटल ऑफ कुंदन मीना. थैंक यू सो मच. एंड नाउ आई इनवाइट गेस्ट ऑफ ऑनर श्री प्रमोद जी अग्रवाल, जिनको हम प्रमोद जी डेरेवाला के नाम से भी जानते हैं. ही इज ए मेंबर ऑन द बोर्ड ऑफ ट्रेड इन द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ही इज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ सिपजो, अ वर्ल्ड ज्वेलरी कॉन्फेडरेशन. He is National Chairman of National Gem and Jewelry Council of India. He has also held the position of Chairman Gem and Jewelry Export Promotion Council. और सबसे बड़ी बात यह है कि वे जयपुर से हैं और अभी आपको काउंसिल ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया है. प्लीज वेलकम प्रमोद जी अग्रवाल. Respected Rajvardhan Singh Ji Rathod Sahab, Honorable Industry Minister, Youth, Welfare, and as earlier my colleague said, the fittest minister. Not only fittest, also dynamic and fastest solution giving minister. And I had occasion to work with him in Rising Rajasthan. He was working very minutely, closely watching everything. And that is the reason his most successful Rising Rajasthan happened. And we are very proud of how you have worked, and really very proud that you are taking care of our industry. And I remember when I met you on few days back in Diwali time, you are the first one who asked me about the gem boots also. And your interest was to give me presentation. And you gave me the time also, but unfortunately you were busy into Rising Rajasthan. And that after we'll work out together how we can time. It is an honor and privilege for me to be here for invitation of JJS. And as earlier my colleague said, JJS is doing fantastic. It is really growth Jaipur business in the many other verticals beside the Kundan Meena. Of course, Kundan Meena is very important, but with Kundan Meena, color gemstone jewelry, another sector, and how they curated with the whole team, it is a really remarkable achievement. And one more thing, which is all the money, whatever they make, they don't take home, they just put in the industry and support the industry. So I want to congratulate the entire team for their hard work and efforts. Honorable Sir, this is an area which is in the world is only area where is 2 SEZ zones, which is mainly for gem and jewelry, and Expo EPIP, just 3 zones of gem and jewelry, plus exhibition convention center, gem and jewelry institute, and world-class laboratory, and after coming the gem boots. So nowhere in the world is that integrated, where is the everything in die of 2 kilometers. The National Gem and Jewelry Council of India, which is formed by Ministry of Commerce and Industry, this is the council which takes care of the internal trade. Where is all the association as to be member of here, it's only association allowed to become member. And we take care of all the issues or the suggestions from the industry, as well as the bridging with the government and trade. Recently, we have been worked also, we worked in the PMLA, which is a very good work which happened. So we've been going through the audit system where GJEPC and NGCCI work together, and things have been really resolved very nicely. And also we have draft SOP for bullion hallmarking, which is the right bullion to reach to the manufacturer. So SOP has been drafted, which is asked by Ministry of Consumer Affairs. Now, to protect more on consumer, we are drafting also SOP between diamond and lab grown. So consumer can know exactly what he's buying. So that has been also drafting by NGCCI. The job has been given by Ministry of Consumer Affairs.
we've been working in various with the Honorable Minister, which ask and vision of Honorable Prime Minister to skill up the main powers, and I'm glad that our associations of Jaipur and GJEPC and JJS all came forward and doing fantastic work to skilling up all these stone cutters. And Nawalji is here, who is the chairman of IHJ, is working always very hard how to bring up new technologies, upgrade things. I have here on the dais some, so I just forgot the names. Rajiv Ji Jain, former chairman GJEPC, secretary JJS. Vimal Chandji Rana Sahab, he is the president of JJS. Nirmal Ji Badia, regional chairman Rajasthan. GJC chairman Sri Mehra Ji, Ajay Ji Kala, and Chetan Mehta Ji, and Swarna Ji, MLC Karnataka, and my colleagues and friends. I'm sorry, I just missed out on names. So National Council is working with the government very closely, as I said earlier. This lab-grown diamond and the diamonds, it's a very important. The government is looking how to get the both vertical grow together simultaneously, same time, draft SOP where the consumer know exactly what is buying. So both verticals can grow. And we are also working in with the government how to this जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की स्कीम थी जो वर्कर्स के लिए, जैसे GJEPC भी काम कर रही है काफ़ी aggressively to skill up and giving them some stipends. So those are very good work initiatives taken by the GJEPC and NGCI, and all the FTAs which is signed by the government of India looking after domestic has been taken, all the opinions and suggestions from the National Council, and we also reach to our industry to ask what they need, so which we can do very good business with an import or export together. I don't take much time. All I would like to say is JGS and entire his team, congratulate again for putting a wonderful show and a grand success show, and I want to congratulate and wish for great success for the exhibitors and visitor. Thank you very much. थैंक यू प्रमोद जी। और आपने जो बात कही कि 2 किलोमीटर के परिधि में, 2 किलोमीटर के क्षेत्र में JECC, जैम टेस्टिंग लैब, 1 EPIP, 2 SEZ and training institute, and above all jam boards will be there. Jam boards will be another 2000 crore project with going to 10,000 crore project. मैं समझता हूँ ये सब बातें आपने बताई है, उसको सुन के लोगों को बेहद अच्छा लग रहा है कि ये एरिया, ये क्षेत्र शीघ्र जेम एंड ज्वेलरी का हब बनता जा रहा है। एक बार आपका पुनः आभार। अब इससे पूर्व कि मैं आज के हमारे मुख्य अतिथि श्री राज्यवर्धन सिंह जी राठौड़ को बुलाऊं, मैं बताना चाहूँगा राज्यवर्धन सिंह राठौड़ इज ए मल्टीफेसेटेड पर्सनैलिटी। ही इज ओलंपिक मेडलिस्ट इन शूटिंग and a retired colonel in the Indian Army. He has been Union State Minister for Information and Broadcasting. Currently serves as the Cabinet Minister for Industries and Commerce, Youth Affairs and Sports and other departments in the government of Rajasthan. His achievements have been recognized with several prestigious awards including Padam Shri, Arjun Award and the Major Dhyan Chand Khel Ratna Award. अभी 10 दिन पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने इसी JECC हॉल में एक दिलचस्प बात कही थी। उन्होंने कहा था कि राजस्थान राइजिंग तो है ही, रिलायबल भी है, राजस्थान रिसेप्टिव भी है और समय के साथ खुद को रिफाइन करना भी जानता है। संयोग से हम कह सकते हैं रूबी रेयर भी है, रॉयल भी है और रेवर्ड भी है। वहीं हमारे मुख्य अतिथि रिसोर्सफुल भी हैं, रीजुविनेटिंग भी हैं, रीएश्योरिंग भी हैं और रिफ्रेशिंग भी हैं। पर मैं चाहूँगा आप एक बार तालियां जोर से बजाएं मेरी बात खत्म होने के बाद। और आज की श्रृंखला यहीं खत्म नहीं हो रही, हमारे चीफ गेस्ट राज्यवर्धन जी भी हैं और राठौड़ भी हैं। नाउ आई इनवाइट द चीफ गेस्ट श्री राज्यवर्धन सिंह साहब, कैबिनेट मिनिस्टर, टू एड्रेस अस।
जेम्स एंड ज्वेलरी शो जयपुर 2024। विमल जैन जी, माफ़ कीजिए, विमल चंद जी, राजीव जैन जी, निर्मल बर्दिया जी, प्रमोद जी अग्रवाल, श्याम मेहरा जी, अजय काला जी, यहाँ पर उपस्थित जेम्स एंड ज्वेलरी से सभी संबंधित उद्यमी, आर्टिसंस, स्टूडेंट्स, buyers and dear friends from media, मैं बैठा हुआ बहुत नज़दीकी से ऑब्जर्व कर रहा था और मैंने जैन साहब को कहा, राजीव जैन साहब को कहा कि यहाँ जितने लोग बैठे हैं या तो ये अत्यंत ही विनम्र हैं या अपनी ताकत नहीं जानते। 50% जयपुर की इकोनॉमी यहाँ बैठी है, 50% जयपुर की इकोनॉमी यहाँ पर बैठी हुई है, चाहे डायरेक्ट ज्वेलरी से एसोसिएटेड हो या हॉस्पिटल से हो या स्कूल से हो, कहीं ना कहीं आप सब जयपुर की 50% इकोनॉमी यहाँ पर बैठी है, लेकिन अपनी ताकत नहीं समझती। सुंदर चीज़ें बनाती हैं और जो पहनते हैं उनको और भी सुंदर कर देती है, लेकिन फिर भी अपनी ताकत नहीं समझती। इतनी शानदार बातें यहाँ पर हो रही थी, लेकिन मुझे पता है बहुत नाम तोल के चीज़ें करते हो, लेकिन तालियां भी नाप तोल के बजाते हो। बहुत आनंद आया यहाँ पर आकर। आपके इस पूरे एग्जीबिशन में से मैं थोड़े से मैं निकला, बाहर से ही जो आपने जो बना रखे हैं शोरूम्स, वो इतने सुंदर हैं कि ये नाइंसाफी है कि ये 4 दिन में खत्म हो जाएगा। अंदर तो कितनी ही सुंदरता होगी। आपके आर्टिसंस को मुझे मिलने का मौका मिला, यकीन मानिए मैं पहली बार इतने नज़दीक से उनको देख रहा हूं, जबकि मैं जयपुर में रहता हूं। जब मेरी कहानी यह है तो हजारों लाखों की भी कहानी यही होगी, और यही शुरुआत होती है। हर चीज की स्टोरी, हर चीज की कहानी बिकती है, कीमत उस कहानी की होती है। आज जब मेरा परिचय भी दे रहे थे तो कहानी बता रहे थे, उसी की वजह से मेरी वैल्यू है। आप सबकी जब मैं यहां पर तारीफ कर रहा हूं, आपकी कहानी बता रहा हूं, उसी में आपकी वैल्यू है। तो जो आप चीज मार्केट में लेकर जाते हैं तो उसकी कहानी होनी चाहिए। मुझे बहुत अच्छा लगा अभी इंडियन इंस्टीट्यूट के जो स्टूडेंट्स थे, किस तरह से नए नए डिजाइन्स, थीम देकर वो डिजाइन्स बना रहे हैं, बहुत शानदार। मुझे लगता है उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी की वो बात पकड़ी है, जहां प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हमें इंटरनेशनल मार्केट को डोमिनेट करना है, हमें इंटरनेशनल मार्केट को भी करना है और नेशनल लोकल मार्केट को भी करना है, टेक्नोलॉजी को भी जोड़ना है और आधुनिकीकरण भी करना है। तो नए नए डिजाइन्स हो, और जो इंटरनेशनल मार्केट में जो जरूरत है उसको हम पहले से ही भापें, और पहले से भापने के लिए हमारे को उनसे बार बार उनके साथ चिंता हो, उनके साथ बैठने का अवसर मिले। जैसे इस तरह के शोज, इस तरह के शोज यहां पर भी हों और बाहर भी हों, या जो बाहर शोज हों उसमें हम पार्टिसिपेट करें, और तब जाकर हमारे को इंटरनेशनल मार्केट किस दिशा में जा रहा है वो पहले से पता चलेगा। ऑथेंटिसिटी भी होनी चाहिए। तो हम जब अपने प्रोडक्ट्स को दुनिया में लेकर जाते हैं तो लोग ये माने कि ये भारत का है, ये जयपुर का है, तो उसमें पूरी सत्यता, उसके बारे में कितना पत्थर है, उसके अंदर किस तरह का पत्थर है, किस तरह के उसके अंदर जो गोल्ड है या सिल्वर है वो किस तरह का है, और कितना समय लगा उसको बनाने में और कितनी बारीकी से उसको बनाया गया, वो कहानी जब कोई पहनेगा तो अपने आप देखने वाले को जैसी कोई तारीफ करेगा तो बोलेगा कि ये कहानी है इसके पीछे। तो आज यहां आकर अत्यंत मुझे खुशी हो रही है। आपके यहां पर प्रमोद जी को शायद याद दिलाया जा रहा था कि इसको और बड़ा करना है। प्रमोद जी को ये याद दिलाया जा रहा था, राजीव जी बोल रहे थे कि इसको और बड़े करने की जरूरत है। प्रमोद जी सुने या नहीं सुने, लेकिन डबल इंजन सरकार ने जरूर सुन लिया है। एयरपोर्ट से 2 किलोमीटर दूर रीको की एक 100 एकड़ की जमीन है, उसके अंदर दिल्ली में जो मंडपम बना है, अगर आप सबका आशीर्वाद रहा, आप सबका प्यार रहा, तो यहां पर भी इन्हीं 4 साल के अंदर एक मंडपम बन के तैयार होगा। मुझे याद है जब कभी बाहर जाते हैं, आप तो मुझसे भी ज्यादा जा चुके हैं,
वेनिस जाते हैं तो वो मुरैनो ग्लास के कैसे बनता है, कैसे होता है, टूर होती है तो उस मामूली कांच के अंदर ही, शीशे के अंदर जो काम होता है उसकी बारीकी को देखकर, उसके अंदर मेहनत जो लगती है उसको देखकर मन करता है कि हम भी कुछ खरीदें। टूरिज्म के साथ भी कहीं ना कहीं ज्वेलरी को जोड़ना चाहिए। इस तरह के शोज हों, इस तरह के एक एग्जीबिशंस हों जहां लोग आए और आकर जहां आपके काम होता है, फैक्ट्रीज है, वहां पर भी आकर देखें कि ये किस तरह से बनता है। और केवल भारत के नहीं, बाहर के लोग भी आए, इसको देखें वो किस तरह से बनता है। मुझे लगता है उससे और भी ज़्यादा बढ़िया मार्केटिंग होगी और उसकी बिक्री और भी बेहतर होगी। आज यहाँ पर जो दूसरे आपके एसोसिएशंस हैं वो भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं, उनका भी पूरा समर्थन यहाँ पे। गोल्ड ज्वेलरी काउंसिल, नेशनल जेम्स एंड ज्वेलरी काउंसिल, जेम्स एंड ज्वेलरी काउंसिल, ये सभी यहाँ पर जुड़े हुए हैं। जेम बोर्ड्स की अभी यहाँ बात हुई और सही बात है, मैंने प्रमोद जी को बोला कि मुझे विजन चाहिए और विजन ऐसा हो जो अगली 25 साल का हो और विजन ऐसा हो जो दूसरे देशों से कहीं आगे हो। हूं मैं शूटर, लेकिन जब मैं बाहर जाता था तो मुझे जेम्स एंड जो बोर्सेस हैं, जेम बोर्सेस, क्योंकि भारतीय जुड़े हुए हैं उनसे, तो मुझे वहां जाने का मौका मिलता था। इतने शानदार जेम बोर्सेस बाहर बने हुए हैं, अगर हमें यहां पर बनाना है तो दुनिया का सबसे शानदार जेम बोर्स बनना चाहिए। जमीन की कोई कमी नहीं है, विजन की कमी हो सकती है, तो विजन आप तैयार करिए। वहां पे लगातार एग्जीबिशंस की जगह हो, वहां पे सेफ वॉल्ट्स हो, ट्रेडिंग का सब कुछ साधन हो, हर तरह से सुरक्षित हो। ये इस तरह का एक आपका विजन होगा तो पूरी तरह से सरकार की आपको मदद मिलेगी। सो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है मैं जितना ज़्यादा बोलूँगा वो शानदार लंच जो है वो आपका बेसब्री से इंतज़ार करता रहेगा। लेकिन फिर मैं कहना चाहूँगा, मुझे अत्यंत ही खुशी है कि इतनी मुश्किलों के बावजूद आप यहाँ तक पहुँचे। आपके जीवन के अंदर अनेकों मुश्किलें आई, समर्थन नहीं रहा, उसके बावजूद भी जब आप यहाँ तक पहुँच गए हैं कि राजस्थान का 17% स्टेट जीडीपी आपके भरोसे है, केवल जेम्स एंड ज्वेलरी से ही राजस्थान का इतना है और जयपुर का तो मैं 50% बोल ही चुका हूं। तो अगर समर्थन मिलता है तो हम इस पूरी बिजनेस को कहीं ज्यादा आगे ले जा सकते हैं। और मुझे लगता है ये जो सेशन हुआ है, ये सेशन इसी का प्रतीक है कि जो विशेषज्ञ हैं वो एसोसिएशंस के साथ मिलकर, नीति निर्धारक के साथ बैठकर हम चर्चा करें, सो दैट हम इस तरह की नीति बना सके ताकि आपका काम और भी आगे बढ़े। स्किल डेवलपमेंट के अंदर हम किस तरह से इन बच्चों की मदद कर सकते हैं वो हम अलग से चर्चा करेंगे। और मैं चाहूँगा कि आपके जितने भी लोग हैं जो स्किल से जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं सरकार के साथ मिलकर, ताकि सरकार उसमें मदद कर सके, ताकि हम पूरे बिजनेस को आगे ले जा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद राज्यवर्धन सिंह जी साहब। और आपने जो बात कही उसमें कुछ सबने गौर किया है कि स्टोरी टेलिंग जरूर होनी चाहिए, और ये भी गौर किया कि साहब मंडप नया एक ऑडिटोरियम का एक बड़ा एरिया बनने की संभावना पूरी है और आगे के 4 साल में सरकार प्रतिबद्ध है। मुरैना ग्लास का आपने जिक्र किया, जिसका जयपुर में भी आजकल आयात किया जा रहा है। और आपने बताया कि जब फॉरेनर्स आएँ, विदेशी लोग आएँ, वो जयपुर में फैक्ट्रीज को विजिट करें। जेम बोर्ड्स की आपने चर्चा की और आपने बार बार इस बात को रेखांकित किया कि यहाँ 50% से ज़्यादा जयपुर के धनाढ्य लोग या जयपुर की परचेजिंग कैपेसिटी या बिजनेस वाले लोग यहाँ मौजूद हैं। एक बार पुनः आपका आभार। अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा कार्यक्रम के समापन के लगभग अवसर पर कि आज के स्मृति चिन्ह के रूप में श्री राजीव जैन जेजेएस की ओर से एक मेमेंटो जेजेएस की ओर से दें। श्री राजीव जैन मुख्य अतिथि राज्यवर्धन सिंह जी को।
मेमेंटो के साथ जयपुर ज्वेलरी शो द्वारा प्रकाशित कुंदन मीना बुकलेट आपको भेंट दी गई। मैं अब आमंत्रित करना चाहूँगा श्री सुधीर कासलीवाल जी को भी मंच पे आएँ और प्रमोद जी डेरेवाला को मेमेंटो दे जेजेएस की ओर से। श्री सुधीर कासलीवाल, मैं थोड़ा फास्ट चलना चाहूँगा। श्री मनोज जी गोयल संयम मेहरा जी के लिए मेमेंटो देंगे। श्री मनोज गोयल। सुधीर जी कासलीवाल मेमेंटो दे रहे हैं प्रमोद जी डेरेवाला को। सुधीर कासलीवाल जी और प्रमोद जी डेरेवाला। प्रमोद जी हमारे यहाँ कई बार आ चुके हैं, तो ये संभावना भी है कि उनके पास ये बुक ऑलरेडी हो। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री मनोज गोयल को कि वे संयम मेहरा जी को, हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर को, जेजेएस की ओर से कुंदन मीना की यह प्रकाशन भेंट दें। और अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ मेहुल दुर्लभ जी को कि वे मंच पे आएँ और श्री निर्मल जी बर्डिया को जेजेएस की यह पुस्तक भेंट दें। और इसके बाद जेजेएस के एग्जीक्यूटिव कमेटी एक बार मंच पे आएगी और अगली बार सेकंड फोटोग्राफ होगी सब कमिटीज़ के साथ। तो मेरा सभी से आग्रह कि वे जेजेएस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मंच पे आने को तैयार रहें आज के गेस्ट के साथ, और उसके बाद विद सब कमेटी। इब्जा के प्रतिनिधि स्टेज पे हैं।